Namaste friends, welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. In this lecture, I am going to talk about heterotic pooling. Before going to heterotic pooling, we should understand two basic concepts or two basic meaning, that is heterosis and pooling. Heterosis क्या होता है? This is a phenomena that progeny of diverse variety of species or classes or crosses between species exhibit greater biomass, speed of development and fertility than both the parents. मतलब जब progeny का performance दो अलग अलग जीनोटाइप्स को क्रॉस करेंगे, then the progeny performance should be one or the other characteristic में अपने पेरेंट से ज़्यादा रहना चाहिए. दैट इज़ नथिंग बट हेट्रोसिस. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हेट्रोसिस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. लाइक स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, उसी को इकोनॉमिक हेट्रोसिस भी बोलते हैं. देन हेट्रोबेल्टोसिस, जब बेटर पेरेंट से परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, देन इट इज़ हेट्रोबेल्टोसिस. एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव हेट्रोसिस और एवरेज हेट्रोसिस, मतलब दो पेरेंट के एवरेज परफॉर्मेंस जो दिखाता है प्रोजनी, देन इट इज एवरेज और रिलेटिव हेट्रोसिस. हेट्रोसिस को सपोर्ट करने के लिए डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, ये सारे थेरीज है. सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज पूलिंग. जैसे आप जानते हैं किसी चीज़ को पूल करना मतलब इकट्ठा करना, तो यहाँ पे क्या है, हेटेरोटिक पूलिंग मीन्स gathering the heterotic groups or grouping of the heterotic pattern. So let's see what is it. The application of heterosis is one of the most contributions of plant genetics to the development of agriculture technology in terms of productivity of maize, cotton and many other crops. Heterosis basically cross pollinated crops में ज़्यादा exploit किया जाता है because cross pollinated crops are made for or meant for heterosis and they feel very compatible when they are crossed between different groups or between different genotypes. Increase in genetic diversity doesn't increase the heterosis. The combining ability of lines has to be routinely checked. तो इस सेंटेंस में दो चीज़ें आए, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कैसे एक जीनोटाइप दूसरे जीनोटाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर कर रहा है. एंड कंबाइनिंग एबिलिटी, ये क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ट्रांसमिट सुपीरियर परफॉर्मेंस टू इट्स प्रोजनी. मतलब कोई पेरेंट है, कितने अपने प्रोजनी को, अच्छे कैरेक्टर्स को दोनों पेरेंट्स कंबाइन होते हैं तब क्या दे सकते हैं, मीन्स द सुपीरियर कैरेक्टर्स obtained by that progeny is nothing but combining ability. Combining ability का एक और भी मीनिंग होता है कि दो पेरेंट्स को एक क्रॉस करेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल है इन ऑर्डर टू गिव द बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स और इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स टू इट्स progeny. So development of hybrid oriented heterotic populations, that is genetically diverse populations, and application of schemes for improving combining ability is an integral part of hybrid breeding. In this regard, the concept of heterotic grouping includes subdivision of the germplasm available in the divergent population. सबसे पहले जब हेटेरोसिस हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, देन we just exploit the gene pools. As you know, there are 4 kinds of gene pools. Gene pool 1, 2, 3, 4. Gene pool 1 100% compatible होते हैं उसके genotypes. Gene pool का 50-50 मतलब 50% they are compatible, 50% not. Then gene pool 3 where they are very minutely compatible with each other. And gene pool 4 क्या होता है, these are genetically modified organisms or any modifications what are to be done or already done in the pool, that is and all those genotypes are placed under gene pool 4. तो जब हम heterotic grouping की बात करते हैं, then we concentrate on the whole gene pool. मतलब यहाँ पे हमें characteristics पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, like which characters will be better exploited in the progeny. तो maybe gene pool 1 को यहाँ पे ज़्यादा prefer किया जाता है. To make heterotic group related or unrelated genotypes from the same or different populations which display a similar combining ability and heterotic response when crossed with genotypes from other genetically distinct germplasm groups. Heterotic pattern, heterotic response, ये सारे terms
के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। हेटेरोटिक रिस्पॉन्स होता है कि हेटेरोसिस एक्सप्रेस करने के लिए जीनोटाइप कितना कैपेबल है। एंड हेटेरोटिक पैटर्न इज specific pair of two heterotic groups which may be populations or lines that express in their crosses high heterosis and consequently high hybrid performance. अब देखते हैं some of the historical perspectives of heterotic grouping. 1942 में स्प्रेग एंड टेटम जैसे उन्होंने GCA एंड SCA इफेक्ट दिया, मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होता है एक जीनोटाइप बाकी कितने सारे या जितने भी फीमेल लाइंस दिए हैं उनके साथ में कितना कंपैटिबल है क्रॉस करने के बाद। एंड SCA होता है इट्स ए स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, मीन्स व्हेन ए पर्टिकुलर A एंड B लाइंस आर टेकन how they are better combining or better compatible with each other is SCA. तो इस कंसेप्ट को स्प्रेग एंड टैटम ने फर्स्ट टाइम कंबाइनिंग एबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था 42 में। फिर 47 में रीड एंड लैनकेस्टर ग्रुप्स, ये थे पॉपुलेशंस और हेटेरोटिक ग्रुप्स, इनको डेवलप किया था USA में। 1980s में हेटेरोटिक ग्रुपिंग पे सीरियस एफर्ट्स स्टार्ट हो गए। इन 1992 मेल्चिंगर स्टडीड एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। हेटेरोटिक पूलिंग की बात आती है या ग्रुपिंग की बात आती है, मेल्चिंगर की कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सिंस 1992 विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स एंड फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन ही स्टार्टेड ग्रुपिंग द जीनोटाइप्स। इन 2001 कडलूबैक एंड कोवर्कर्स, इन्होंने मेज में फ्लिंट एंड डेंट टाइप ऑफ जो वैराइटीज या उस ग्रुप के जितने भी लाइंस थे, इनब्रेड लाइंस थे, उनको ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया। इनब्रेड लाइंस रिपोर्टेड ए हाई proportion of GCA effects than SCA effect for yield and various other characteristic agronomic traits. अब देखते हैं हेटेरोटिक ग्रुपिंग क्यों चाहिए। हायर मीन हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड परफॉर्मेंस, अगर हम जीनोटाइप्स लेंगे बहुत सारे और उसमें कई भी क्रॉसेस करते जाएंगे तो इट इज़ लाइक सर्चिंग ए नीडल इन हेस्टॉक, मतलब हमको कुछ पता नहीं है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद ज़ीरो एंड एंडिंग विथ नथिंग। अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग में जाते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वेन एवर वी टॉक अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड वी आर जस्ट imposing a chemical mutagen or physical mutagen whatever it may be without any intention. For example मैं एक कैरेक्टर ले रही हूँ, जैसे कि मेरा इंटेंशन है प्लांट का हाइट रेड्यूस करना, तो कोई मतलब बनता है। ऐसे ही मैं म्यूटेजेनिक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड कर रही हूँ, देन देर इज़ नो मीनिंग एंड देर वोंट बी एनी पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो वैसे ही अगर हम जीनोटाइप्स को क्रॉस करते जाएंगे, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, इवन टाइम, और इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर हेटेरोटिक ग्रुपिंग मतलब हेटेरोटिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसका ग्रुपिंग बनाएंगे, देन इट विल बी वेरी कंपैटिबल टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच वी नीड टू बी वर्क इन द फ्यूचर। तो हायर मीन हेटेरोसिस एंड हाइब्रिड परफॉर्मेंस के लिए हेटेरोटिक ग्रुपिंग चाहिए। reduced specific combining ability variance and lower ratio of SCA to general combining ability variance. Assigning lines to heterotic groups would avoid the development and evaluation of crosses that should be discarded, allowing maximum heterosis to be exploited by crossing inbred lines belonging to different heterotic groups. देखते हैं importance of maintaining heterotic pools. इम्पॉर्टेंस ये है डेवलपिंग पेरेंटल लाइन्स दैट आर अनरिलेटेड बाय डिसेंट। तो हम पेरेंटल लाइन या इनब्रेड लाइन जिसको भी हमें मेंटेन करना है या उनको आइडेंटिफाई करके क्रॉस करना है, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड बेटर यूटिलाइज देम इन मेकिंग हाइब्रिड्स। इंक्रीजिंग एलिलिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग द हेटेरोटिक पूल्स, जैसे आप जानते हैं मोर डाइवर्स डजंट मीन यू विल गेट हायर हेटेरोटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे फिर कंपैटिबिलिटी की बात आएगी। हेटेरोसिस में अगर 50% से ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड बैरियर्स आने लगते हैं, देन व्हाट वी वोंट गेट द फेवरेबल रिजल्ट्स। तो इन एलिलिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करना है तो हेटेरोटिक ग्रुप्स में ही इंक्रीज करना है, सो दैट बेटर कंपैटिबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लॉयटेड।
increased degree of heterozygosity in the resulting hybrids, then sustainable hybrid breeding. हेटेरोटिक ग्रुप में जब ग्रुप बनाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे, डेंट कॉर्न एंड फ्लिंट कॉर्न टाइप के हेटेरोसिस का पूलिंग बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेंट टाइप के जितने भी जीनोटाइप है उसको एक जगह में इकट्ठा कर लिया ताकि फ्यूचर में डेंट डेंट क्रॉस करके हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। जब डेंट एंड फ्लिंट को क्रॉस करके हम बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्नेस कर सकते हैं। That is one example. Then for sustainable hybrid breeding, heterosis pooling बहुत ही important है। Heterotic groups can be identified by evaluating test cross performance among available germplasm in fields. तो heterotic grouping कैसे बनाते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट क्रॉस परफॉर्मेंस। टेस्ट क्रॉस परफॉर्मेंस में क्या होता है, एक टेस्टर होता है जिसको बहुत सारे लाइंस को क्रॉस किया जाता है। तो टेस्टर क्या होता है, जिसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, एंड द कैरेक्टर इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल द लाइन्स, वो एक कैरेक्टर टेस्टर में लैकिंग होता है, तो हमें वो कैरेक्टर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर टेस्टर में भी वही बात हुई, लाइन में भी वही बात हुई, देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, तो है एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्मेंस होता है या टेस्ट क्रॉसिंग होता है प्रोसीजर, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट व्हेन वी नीड टू screen or when we need to plant so many genotypes and go for test crossing, it is quite difficult क्योंकि number of crosses बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मेल्चिंगर 1999 में सम पॉइंट्स को सजेस्ट किया है, जैसे कि क्लस्टरिंग जर्मप्लाज्म बेस्ड ऑन जेनेटिक सिमिलैरिटीज यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो पूलिंग करने के लिए बेस्ट अप्रोच है डाइवर्सिटी एनालिसिस। मॉलिक्यूलर हो या मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, ये दोनों डाइवर्सिटीज़ को किया जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे, फिर फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे, डाइवर्सिटी एनालिसिस में जाएंगे, फिर उसका कोरिलेशन पैटर्न देखेंगे कि मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन और मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी स्टडी इज हाउ फार रिलेटेड और हाउ फार ट्रू टू द फिनोटिपिक डाइवर्सिटी स्टडी। तो इन दोनों के बीच में अगर कोरिलेशन या सिमिलैरिटी मिल जाएगा, देन इट इज कंफर्म्ड दैट रियली देयर इज अ डाइवर्सिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रुप और अमॉन्ग द ग्रुप। सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव जीनोटाइप्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप, evaluating crosses among representative genotypes in field trials, and finally selecting heterotic groups based on hybrid performance or its components, namely heterosis and per se performance. कमिंग टू मेथड्स ऑफ डेवलपिंग हेटेरोटिक ग्रुप्स, तो कैसे हेटेरोटिक ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, टेस्ट क्रॉस से उसको स्क्रीन करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो उस कैरेक्टर के जितने भी लाइंस आते हैं उनको एक ग्रुप बनाते हैं, दैट विल बी ए पूल। देन वी मे गो फॉर पेडिग्री एनालिसिस। एग्जाम्पल, वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1983 में काम किया था, हु अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई इनब्रेड लाइन्स ऑफ मेज इनटू 4 to 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस एंड टू प्रेडिक्ट हेटेरोटिक पैटर्न्स यूज्ड इन चाइना। देन geographical isolation inference. Example, hybrid rice development in China, 2 heterotic groups, that is easily season indica from southern China and mid or late season indica from Southeast Asia were identified for 3-line hybrid rice based on wild abortive male sterile cytoplasm. इसको किसने काम किया था इस पे? यॉन इन 1977. फिर मेजरमेंट ऑफ हेटेरोसिस, कंबाइनिंग एबिलिटी एनालिसिस एंड yield performances. तो 14 maize inbred lines in Iran were crossed in a diallele mating design for investigating combining ability of genotypes for grain yield and to determine heterotic patterns among germplasm sources using both Griffith's method and the biplot approach for diallele analysis. जैसे कि सिक्किम प्रिमिटिव लाइन्स है, तो उनको दूसरे जगह में लगा दिया, देन देयर परफॉर्मेंस विल बी डिफरेंट बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सप्रेसिव अंडर
हिली एरिया मतलब उनका जो परफॉर्मेंस क्या होता है, बंची टाइप मतलब मैनी कॉप्स होते हैं एक प्लांट में, तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए उसी रीजन या जोग्राफिकली वो सिचुएटेड होते हैं। ओके, तो जोग्राफिकल रिलेटेडनेस भी इस अप्रोच या हाइड्रोसिस पूलिंग अप्रोच से जोग्राफिकल रिलेटेडनेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं। लास्ट अप्रोच है मॉलिक्यूलर मार्कर्स, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जिससे हम स्क्रीन करके जीनोटाइप्स को एक जगह में इकट्ठा कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्कर एंड द मार्किंग पैटर्न। कमिंग टू क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेटेरोटिक ग्रुप्स और पैटर्न्स, तो मेल्चिंगर ने 3 पॉइंट्स दिया है, जैसे कि हाई मीन परफॉर्मेंस एंड लार्ज जेनेटिक वेरिएंस इन द हाइब्रिड पॉपुलेशन, मतलब मीन परफॉर्मेंस ज़्यादा होना चाहिए एंड जेनेटिक वेरिएंस भी ज़्यादा रहना चाहिए। High per se performance and good adaptation of a parental population in the target region, then low inbreeding depression. Inbreeding depression क्या होता है? This is just opposite term to heterosis, where the performance of inbred will be reduced over a period of time due to continuous inbreeding or selfing or seeding, whatever it may be. Selfing और सेल्फ पॉलिनेशन को हम जब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्रमोट करते हैं, देन वी मे ऑब्जर्व द इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रॉब्लम। Assemble large number of germplasm and make parental population of crosses from among which highest performance hybrids are selected as potential heterotic groups and patterns. Performance of the putative patterns with the established ones is compared. देखते हैं, देर आर टू स्ट्रेटजीज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेटेरोटिक पूल्स। स्ट्रेटजीज को क्रेस 1967 में और मेल्चिंगर एंड गम्बर ने 1998 में दिया है। तो क्रेस का क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे पहले जर्मप्लाज्म को कंबाइन करेंगे, फिर रैंडम मेटिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप में रैंडमली क्रिएट 2 पॉपुलेशंस यूज्ड एज हेटेरोटिक ग्रुप्स, फिर उन हेटेरोटिक ग्रुप्स में वैसे ही रखेंगे एंड जब भी हमें मतलब नीड है तो उन हेटेरोटिक ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स को लेंगे क्रॉस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट सेकेंड अप्रोच है मेल्चिंगर एंड गम्बर का। इसमें क्या करते हैं, ग्रुप जर्मप्लाज्म्स बेस्ड ऑन इट्स क्रॉस परफॉर्मेंस, जैसे कि यहाँ पे क्रॉसिंग को अकाउंट में लिया, देन मार्कर परफॉर्मेंस को अकाउंट में दिया। देन इन द सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाइड ग्रुप्स आर द 2 हेटेरोटिक ग्रुप्स। तो हेटेरोटिक ग्रुप्स डिफरेंट क्रॉप्स में बनाए गए हैं ऑलरेडी एंड दे आर वेरी पॉपुलर। एग्जाम्पल मेज में लैंकेस्टर, रीड, SPT and P means introduced from pioneer hybrids. Then BSSS, PA मतलब group A germplasm derived from modern US hybrids in China. PB मतलब group B germplasm derived from modern US hybrids in China. Then LAN, LRC that is Luda Rub Cob and SPT that is Saipang Tua. The other groups are Reed, Lancaster, P group, TSPT that is Tang, Sipping Tuva and Tem Topic group 1. फिर रेपसीड में आते हैं, इसमें एशियन, यूरोपियन विंटर टाइप एंड कैनेडियन यूरोपियन स्प्रिंग टाइप में हेटेरोटिक पोलिंग्स बनाया है। राइस में अर्ली सीजन इंडिका वेराइटीज फ्रॉम सेंट्रल एंड सदर्न चाइना एंड इंडिका वेराइटीज फ्रॉम सदर्न एशिया मोस्टली फ्रॉम इर्री। अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोसिस ग्रुप्स। फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन एंड डाइवर्सिटी स्टडीज, पहले मॉलिक्यूलर एंड फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन करना जरूरी है। देन स्टडीज ऑन प्लांट टाइप, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आइडेंटिफाई द आइडियल प्लांट टाइप मीन्स इडियोटाइपिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। स्टडीज ऑन हाइब्रिड परफॉर्मेंस एंड कंबाइनिंग एबिलिटी, हेटेरोसिस को पैटर्न स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोटिक ग्रुप, exploitation of heterotic group through reciprocal selection for combining ability, broad based population and trait based population में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में एक कॉटन में स्टडी किया है जिसमें हेटेरोटिक पूलिंग बनाया है डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट टाइप जिसमें रिड्यूस्ड प्लांट हाइट, अर्ली बेयरिंग हैबिट, लेस लेंथ ऑफ मोनोपोडिया, सिम्पोडिया, reduced internodal length,
फिर रोबस्ट टाइप में आएंगे तो हाई प्लांट हाइट, थिक स्टेम एंड लीफ, इंटरनोडल लेंथ इज मोर, बॉल साइज इज मोर, लेट बेयरिंग टाइप। तो इन सारे कैरेक्टर्स को एक ग्रुप मतलब रोबस्ट टाइप में ग्रुपिंग किया। फिर तीसरा जीन पूल है स्टे ग्रीन जीन पूल और हेटेरोटिक पूल, जिसमें लीव्स आर लस्ट्री ग्रीन, देन ग्रीनिश रिमेंटिल बोल्स आर हार्वेस्टेड एंड फोटोसिंथेसिस टिल हार्वेस्ट ऑफ बोल्स। तो जैसे हेटेरोटिक ग्रुपिंग पैटर्न बनाया है कॉटन में, तो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि कॉम्पोजिट्स 3 टाइप के बनाए हैं, रोबस्ट टाइप, स्टे ग्रीन टाइप एंड कॉम्पैक्ट टाइप। अब देखते हैं हम कि हेटेरोटिक पैटर्न से क्या क्या मतलब उससे क्या क्या हो सकता है। टू आइडेंटिफाई द जर्मप्लाज्म, हेटेरोटिक ग्रुपिंग को यूटिलाइज किया जाता है टू एनरिच द जर्मप्लाज्म पूल, टू डेवलप ए सिंपल मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग हेटेरोटिक ग्रुप्स एंड पैटर्न्स, टू डिफाइन जेनेटिक इंटरैक्शन एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन हेटेरोटिक पैटर्न्स। स्प्रेग 1984 में बताते हैं कि द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए ब्रीडिंग प्रोग्राम इज द रिकॉग्निशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेटेरोटिक पैटर्न। दिस रिकॉग्निशन बोथ सिंप्लीफाइज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। तो कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। तो अब तक हमने देखा कि हेटेरोसिस क्या होता है, कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है, हाउ टू मेक हेटेरोटिक ग्रुपिंग, हेटेरोटिक पूलिंग क्या होता है, एंड द नीड ऑफ हेटेरोटिक पूलिंग, हाउ द कैरेक्टराइजेशंस आर मेड, देन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द हेटेरोटिक पूलिंग, देन ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड ग्रुप्स के बारे में या पूल्स के बारे में हमने जाना। फाइनली कि कैसे हेटेरोटिक पैटर्न या ग्रुप इम्पॉर्टेंट है या उसका यूटिलिटी कहाँ कहाँ पे है ये देखा। फ्रेंड्स, आई होप द टॉपिक और द information whichever furnished by me is helpful to you, and if you like this video please do not forget to like, keep on commenting and subscribing my channel. Thank you.